الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 جمادی الاول 1443 ہجری 19 دسمبر 2021 یوم الاحد شنبہ اتوار سنڈے. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 36. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے لغزش واقع ہوئی. اب آگے ارشاد پاک ہو رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. قرآن پاک کے اعجاز کو دیکھیے. قُلْنَا اهْبِطُوا، بس اتنا ارشاد فرمایا. آگے کیا تھا پہلے؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس جگہ پر جس مقام پر تھے. یہاں بھی یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ جنت سے نکل جاؤ. قُلْنَا اهْبِطُوا، اتر جاؤ. اس میں یہی اشارہ ہے کہ جو مرتبہ آپ کا ہے، جو قرب ہے، اس قرب سے اب آپ کو اتر کر جنت کی طرف جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ تو وہیں کے خلیفہ ہیں نا. خلافت آپ کو دی گئی ہے، وہیں سے آپ کی تخلیق ہوئی ہے. وہی آپ کا جسمانی وطن، مٹی زمین سے تھی تو وہ جسمانی وطن وہی ہے. وہیں جا کر آپ کو خلافت اور رسالت کے فرائض انجام دینے ہیں. جنت تو آپ کی ہے ہی، جنت تو ملنی ہی ہے. اور شیطان جو چاہ رہا تھا، اس کا اصل مقصد آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا تھا ہی نہیں. اس کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ جس طریقے سے میری تذلیل ہوئی ہے، میری ذلت ہوئی ہے، مجھے ذلیل کیا گیا، سب کچھ میرا چھن گیا، اسی طریقے سے میں آدم کے ساتھ کروں. اس کا مقصد یہی تھا کہ آدم کا مرتبہ ختم کر دوں. جو مقام، جو لغزش، جو آدم کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ مرتبہ میں ختم کروں. اس کا اصل مقصد یہ تھا، پر اس میں کامیاب نہیں ہوا. کیسے کامیاب نہیں ہوا کہ آدم علیہ السلام کا مرتبہ تو اور بڑھ گیا. وہ تاج جو خلافت کا دیا گیا تھا وہ تو وہیں کا وہیں رہا، بلکہ اس میں اور اللہ عز و جل نے اور اس میں پختگی عطا فرما دی کہ اب جو خلافت دی گئی تھی اب وہ فرائض انجام دینے کے لیے دنیا میں بھیجا بھی جا رہا ہے، زمین پر بھیجا جا رہا ہے. یہ تو اور جل گیا. میں چاہ رہا تھا کہ وہی ختم ہو جائے، وہ تو الٹا ہو گیا. آدم کو صرف جنت سے نکالا گیا ہے. جب دنیا میں تو یہ جائیں گے تو دنیا کو ہی جنت بنا دیں گے، دنیا کو ہی آباد کر دیں گے. تو اس کا اصل مقصد حاصل نہیں ہو سکا، الٹا یہ اور ذلیل ہوا، اور ذلیل. قیامت تک کے لیے اس پر لعنت ہوتی رہی اور ہوتی رہے گی. اور آدم علیہ السلام کا تاج خلافت، تاج رسالت وہ اور چمکتا رہے، چمکتا رہے گا. آدم علیہ السلام اور قیامت تک لوگ آپ کی رسالت اور آپ کی خلافت کی گواہیاں دیتے رہیں گے، مانتے رہیں گے. اس کا مقصد حاصل ہی نہیں ہو سکا. اب یہاں پر ایک لفظ دیکھیے، قُلْنَا اهْبِطُوا فرمایا. پہلے وہاں پر کیا تھا؟ فَأَزَلَّهُمَا، اور تھا تم دونوں کھاؤ، تم دونوں پیو، تم دونوں جنت میں جیسے چاہو رہو، بس تم دونوں اس کے قریب مت جانا. دو لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے. یہاں پر ابھی دو ہی ہیں، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا پر خطاب ہو رہا ہے جمع کا، پلورل آ گیا، تسنیہ ہٹ گیا. قُلْنَا اهْبِطُوا
जमा, अच्छा उतरना फरमाया, हुबूत जो कहते हैं उतरना, किसी जगह से उतरना। तो इससे भी ये साबित हुआ कि जन्नत जो है आसमानों के ऊपर है, अर्श पर है। और ये भी ये साबित हो गया कि जन्नत बनी हुई है, ऐसा नहीं कि क़यामत के बाद बनेगी, बनी रेडी है, सिर्फ अमल करो अच्छे और दाखिल होते जाओ, इंतज़ार में है, आओ। वैसे ही जहन्नम भी रेडी है, हल मीम मस्जिद के नारे लग रहे हैं, और कौन है, और कौन है, आओ। तो जहन्नम से बचते रहने की दुआ करनी है और जन्नत में जाने की उम्मीदें रखनी, दुआएं करनी है, कोशिशें नेक अमाल करने हैं, ईमान की सलामती रखनी, तो इंशाअल्लाह पहुंच भी जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सरकार के करम से, अल्लाह की रहमत से पहुंच भी जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ईमान सलामत रह गया तो अल्लाह सलामत रखे ईमानों को, आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी पता चल गया कि आदम अलैहिस्सलाम उसी जन्नत में थे, ये नहीं था जो मैंने पीछे भी अर्ज किया कि कोई और बाग बना दिया गया, वहीं पर रखा गया, नहीं, ये सब गलत बातें हैं। उसी जन्नत में से थे और उसी जन्नत से आपको ज़मीन पर उतरने का हुक्म फरमाया। अब ये जमा क्यों फरमाया, दो लोग हैं लेकिन जमा फरमाया गया, प्लूरल। तो जमा इसलिए, इसकी दो बातें हैं कि इसमें आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के साथ साथ आदम अलैहिस्सलाम की पीठ में जो औलादें थीं, आपकी जो औलादें, जो नस्ल इंसानी, नौ इंसानी जो आपसे चलने वाली थी, उससे भी खिताब है, तमाम इंसानों से, सब के सब, सारे के सारे इंसान उतरो, सब निकलो जन्नत से और दुनिया में जाओ, सारे इंसान, सबसे खिताब फरमाया गया। एक ये तफसीर की गई है मुफस्सिरीन ने के इसलिए जमा फरमाया, सारे इंसानों से खिताब, आपकी पीठ में जो थे सब से। और दूसरा फिर एक ये कहते हैं, अगर वो उन रिवायात को माना जाए कि शैतान वहीं पर था, मतलब जन्नत से चोरी छुपे दाखिल होने की इजाज़त उस वक्त, मतलब चोरी छुपे दाखिल हो गया था, अगर उन्हें माना जाए तो फिर यहाँ पर ये कहा जाएगा, ये भी कहा मुफस्सिरीन ने कि यहाँ पर खिताब 5 लोगों से हैं, 5 लोगों को जन्नत से निकाला गया, उतारा गया, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम और शैतान लाइन, और 36 चौथा जो है सांप, और 5वां मोर। ये सारी जो रिवायतें, जो किस्सा बयान किया गया, वो उसको माना जाए तो उसमें इन 5 से खिताब है। और नहीं माने, अगर वसवसे वाली बात ही माने, तो इसमें जो औलादें थीं, तमाम औलादों से खिताब हुआ, सब से कहा गया, तमाम इंसान ज़मीन पर उतरो। तो ये अब आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, कुल्ना हबितु बअदुकुम लिबअदिन अदु, बड़ा ये एक ऐसा ये नुक्ता है, ये समझ में नहीं आता मेरे, कि कुरान पढ़ते हैं, कुरान देखते हैं और फिर भी ये बातें करते हैं कि मुसलमान एक होकर रहो, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, फिरके मत बनो, सब एक हैं, कलमा पढ़ने वाले एक हैं, नबी एक, रसूल एक, किताब एक, अल्लाह एक, तो मुसलमान एक क्यों नहीं हो जाते, अलग अलग क्यों हैं? कुरान पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं कि नहीं? साफ साफ फरमाया गया, कुल्ना हबितु बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र, तुम में से कुछ बाज के दुश्मन होंगे। क्या फरमाया जा रहा है? तुम में से कुछ बाज जो है, बाज के दुश्मन होंगे। बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व, अब इसको अगर ये कहा जाए कि उन 5 से खिताब था, तो फिर ये होगा कि इंसान शैतान का दुश्मन, शैतान इंसानों का दुश्मन, सांप मोर का दुश्मन, मोर सांप का दुश्मन। ये भी आया है, मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है। और देखिए दुश्मनी नज़र भी आती है, सांप को देखकर मोर उसे मारने आता है, खाने की कोशिश करता है, सांप जो है मोर को डसने की कोशिश करता है, सांप
इंसानों को मारने की कोशिशें करता है। और हदीस पाक में हमें भी हुक्म मिला है कि 3 दिन, मतलब अगर कहीं घरों में रहे तो 3 दिन उसे, और दुआएं भी हैं उसमें मौजूद हैं। तो कि 3 दिन इजाज़त दी जाए घर से निकल के तो ठीक, वरना मार दो सांप को, क्योंकि जिन्नात जो है सांप बनकर भी रहते हैं। ये अल्लाह ने कुदरत अता फरमाई है। तो इंसान सांप का दुश्मन, सांप और ये सांप जो है फ़ौरन डसने को तैयार, और ऐसा जहरीला, कुछ तो इतने जहरीले होते हैं कि बस उस थूक से ही, जो दूर से ही फुनकार मारते हैं तो अंधा कर देते हैं या मौत वाक़ हो जाती है। सारे दुश्मन हैं। तो ये अगर इसे माना जाए तो ये सब पांचों भी दुश्मन एक दूसरे के, और अगर वो माना जाए कि इंसानों से खिताब है तो फिर इंसान भी आपस में दुश्मन। कुरान कह रहा है बादुकुम लिबादिन अदू, कुछ जो है एक दूसरे के दुश्मन, आपस में दुश्मन होंगे। कौन किसका होता है? काफिर जो है मोमिनों के दुश्मन है। मौका, जहां मौका मिला मुसलमानों को, मोमिनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं, ये जारी ही रहेंगी। बस मुसलमान ऐसा बेवकूफ़ है कि वाहवाही, उनकी चापलूसी करने से बाज नहीं आता। बदबख्त नेक बख्तों के दुश्मन रहेंगे। अच्छा, एक दुश्मनी ये जाहिल जो है आलिमों के दुश्मन, आलिमों से बनती ही नहीं है। जाहिलों की चले दुकान कैसे चले, आलिम इनकी दुकानों पर हमला कर देते हैं ना, इनकी जहालत पर हमला करते हैं, तो ये आलिमों के ही पीछे पड़ जाते हैं। लंबे बाल, चूड़ियां पहने नाच रहे हैं, इसे सूफी, अपने आप को सूफी का नाम दे रहे हैं, ये सब जहालत है। उलमा इनका रद्द करते हैं, इसलिए आलिमों के खिलाफ दुश्मन। फासिक जो हैं नेक लोगों के दुश्मन, दीनदारों के दुश्मन। और वहीं पर यह दुश्मनी भी है अच्छे अकीदे वाला और गलत अकीदे वालों की दुश्मनी। बादुकुम लिबादिन अदू, कुछ जो है आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो फिर ये जब कुरान कह रहा है दुश्मनी होगी, तो फिर तुम कहाँ से आ गए कि सब मिलकर रहो, एक रहो, झगड़े मत करो। ये मिलना और एक होना तो उस वक्त हो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मानों में जैसा उनकी शान और अज़मत वैसा माना जाए, तो फिर बिल्कुल हमारी भी तरफ से बिल्कुल पहले तौबा करके आ जाएं, तो बिल्कुल मिलकर रहने को तैयार हैं। गुस्ताखियाँ करते रहें, तौहीन करते रहें और कहें कि हम भी मुसलमाने मिलकर रहो, तो ये तो हो नहीं सकता। यह कुरान में भी साफ मौजूद है कि एक दूसरे का दुश्मन होगा। जब तक कि ये गलत अकीदे रहेंगे दुश्मनी चलती रहेगी। तो अल्लाह सवजल गलत अकीदे वालों से बचाए, हमारे ईमान की हिफाजत करे। अब इसके बाद जो है और फिर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो फिर सारे क्या वाक़यात हुए वो इंशाअल्लाह सवजल आगे के ऑडियो में समाअत करेंगे। परवरदिगार कबूल फरमाए, आम करे, मकबूल फरमाए, काश मुकम्मल हो सके। आमीन बिजाहि नबी अमीन।